start our spoken English lecture 1 today. Okay, so class, what we are going to do, we are going to learn some specific tips and tricks related with how to you can learn the spoken English things. ठीक है, और उसके लिए I am going to give you some tried and tested tips and tricks. What are my own experience related with. Okay, so we are going to have some tips related with that, because many people feel uncomfortable while speaking spoken English. So that is why these tips are here. The first thing is that you do not need to hesitate. Okay, we all feel hesitation to talk in front of the people in that language specifically which we do not know much. Okay, or that is English language. Okay, so first of all, I also felt that. Okay, when I was learning English at that time, I also felt that. But the thing is that you need to transform your fear into action because people have their job to talk about you. They will talk about you, चाहे आप कुछ भी कर लें. ठीक है, तो आपने ये सोचना है कि लोगों का काम तो बातें ही बनाना है. ठीक है, और वो बातें ही बनाएंगे. So that's why you need to overcome your hesitation, and after that you need to start speaking English in anywhere, any at any place you want to speak. ठीक है, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो फ्रेंड्स का सर्कल हो, या चाहे कोई भी ऐसा ओकेजन हो. There you need to transform your fear into action and you need to start speaking. Do not hesitate in front of the people, क्योंकि अगर आप hesitation करते रहेंगे तो फिर आप hesitate ही रहेंगे. You do not gain the confidence. ठीक है, तो you will have to overcome. ठीक है, after that सबसे जो important exercise है जो आपने आज से करनी है वो ये है, you need to talk to yourself. ठीक है, some people do habit this. ठीक है, and they talk to themselves while making plans or something else, but you need to talk to yourself for improving your English. So start speaking yourself in English language, whatever you are going to do. Let's suppose कि you are going to have a picnic tomorrow. ठीक है, या you are going to have some event tomorrow. Okay, so you are going to speak it up in English with yourself and just plan for that event. ठीक है, उसके बारे में सोचें कि I will have to wake up early, and after that I will be getting ready and go to buy some groceries, and after that I will have to come and then I will have to decorate the room or the space for a specific that event, and after that I will do this, then I will call my friends, then I will do this, and then I will get ready. So just like that आपने इस तरह से अपना जो सिनेरियो है वो डिफाइन करना है. ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं that you need to talk to yourself. If you have any presentation या आपकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो आप करने जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल में, so there you can just translate it in English and you need to talk to yourself. अच्छा, आप अपने आप से बात जब करेंगे तो उसके लिए if you watch yourself into the mirror just like this boy. ठीक है, he is watching himself in the mirror. तो अगर आप मिरर में देख के बात करते हैं उससे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. उससे ये होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा. इवन देन के यू आर टॉकिंग विद योर सेल्फ इन टू द मिरर. ठीक है, बट यू आर मेकिंग आई कॉन्टैक्ट. तो ये आई कॉन्टैक्ट चाहे आपके अपने रिफ्लेक्शन के साथ ही क्यों ना हो, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करता है. ठीक है, तो that means कि when you talk to yourself while watching in front of the mirror, so you will be boosting up also your confidence and also your improving your English. ठीक है, और ये अपने आप से बात करने को हम कहते हैं soliloquy. That's why I have written this word here. ठीक है, after that you can listen to English. ठीक है, अब English listening करनी है, उसके लिए it depends on your choice. If you want to listen to news, if you want to just watch the videos, or if you just want to watch the movies, but please listen to their dialogues and things. Okay, so after listening you can develop your speaking. I
give you the example of that. When you are a kid, at that time, the first skill of your language you have developed, that is listening. ठीक है, first everybody develop listening and after that speaking. Listening जब तक develop नहीं होगी, जब तक speaking develop नहीं होगी. So that's why we will have to this class is recording, so I will be sharing the recording in the group, so you do not need to worry about that. ठीक है. अच्छा, मैं आपको क्या बता रही थी कि लिसनिंग जो है वो आपका एक बेसिक स्किल है किसी भी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए. अगर आपने अरबिक भी सीखनी है ना, अगर आपने कोई और भी ऐसी लैंग्वेज सीखनी है जो बहुत मुश्किल लगती है आपको, आप उसकी लिसनिंग करना स्टार्ट कर दें. आप उसको बार बार लिसनिंग करेंगे, डेली बेसिस पे आप एक टाइम बना लें और उसकी आप लिसनिंग करते रहें, चाहे आप कुछ भी सुने, तो आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी. बिकॉज लिसनिंग एक ऐसा सेंस है जो कि आपके माइंड को प्रोसेस करता है और आपका माइंड वो प्रोसेस करके आपके ज़बान पे वर्ड्स ले आता है. तो दैट इज़ वेरी पावरफुल थिंग. सो यू आर गोइंग टू लिसन टू द इंग्लिश थिंग्स. आई डोंट केयर अबाउट के यू आर वॉचिंग मूवीज़, you are watching videos, you are just listening to the songs, or you are just listening to the news. I don't care about that, but you need to listen to English. Okay, so it's up to you. And after that you need to record yourself while speaking. So class, you have your smartphone in your hands. Okay, that is a very important and beneficial gadget you have. Okay, so there you can just switch on the recording things and after that you can record yourself. अब आप अपने आप से जो बात कर रहे हो उसको ही रिकॉर्ड कर लें. आपने कोई प्लानिंग करनी है, आपने कोई चीज़ याद रखनी है, तो आपने वो रिकॉर्ड कर लेनी है इंग्लिश में. ठीक है. एंड व्हेन यू रिकॉर्ड योरसेल्फ इन इंग्लिश एंड आफ्टर दैट व्हेन यू लिसन टू दैट, व्हेन यू प्ले इट एंड लिसन टू दैट, देयर यू विल बी फाइंडिंग योर ओन मिस्टेक्स. जब आप बोल रहे होंगे आपको तब समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब आप उसको प्ले करके सुनेंगे तो आपको अपने मिस्टेक्स खुद नजर आएंगे. एंड आफ्टर दैट यू विल बी इम्प्रूविंग दैट. सो यू कैन यूज योर वॉइस रिकॉर्डर और यू कैन यूज योर WhatsApp recorder to send messages to someone. Okay, among your friends and family. ठीक है. So you can just send the messages and also you can record yourself while speaking English. ठीक है. तो ये काम भी important है. ये जो जितने भी मैं आपको टिप्स बता रही हूँ उसको आपने easy नहीं लेना है, ये बहुत powerful टिप्स हैं. So when you are going to do these practices, then you will be watching the improvement in your English. ठीक है. After that class, reading things. Reading is also is important skill for the English. ठीक है. तो you need to read an English book. अब ये मैं आपको daily basis पे नहीं कहूँगी. You can read English book once or twice a week. Okay, but make it a habit. At least once a week. Let's suppose कि आपने कहा कि मुझे सैटरडे को मैं एक बुक रीडिंग करनी है मुझे, तो 1 घंटा आपने रखनी है फॉर द रीडिंग. एंड रीडिंग आपने करनी है इंग्लिश में ऑफ कोर्स. एंड फॉर 1 hour यू विल बी जस्ट रीडिंग. ठीक है. तो दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव योर स्पीकिंग थिंग्स. Then you can follow these YouTube channels. I'm going to show this link. ठीक है. इसको कॉपी करते हैं और जाते हैं क्रोम पे. अच्छा जी. सो क्लास यहाँ पर हम देखते हैं कि ये, अच्छा मैंने इसको कॉपी कर दिया. क्लास इस चैनल का नेम है Vsauce और ये YouTube का बहुत अच्छा चैनल है. इस पे आपको बहुत जो है वो सरप्राइजिंग और स्ट्रेंज रिसर्चिंग टाइप चीज़ें आपको मिलेंगी, वीडियोज़ मिलेंगी. And the important thing is that their English language is good, like you can understand as a beginner. ठीक है. आप देख सकते हैं कि इस तरह की वीडियोस यहाँ पर लगी हुई हैं. So when you watch these videos, then you can understand just like that. Did people used to look older? ठीक है. दिस इज अ वीडियो, ये कुछ रिसर्चिंग करके इन्होंने बनाई हुई है. अब आप टॉपिक्स देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह की वीडियोस है यहाँ पर. डू चेयर्स एग्जिस्ट, द फ्यूचर ऑफ रीजनिंग. ठीक है. सो जस्ट लाइक दैट, व्हेन यू लिसन टू, व्हेन यू वॉच टू दीज वीडियोज, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट्स लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ अ क्लियर इंग्लिश. मतलब उस तरह की इंग्लिश नहीं है जो आपको समझना है, क्लियर इंग्लिश है. सो यू कैन जस्ट लिसन एंड वॉच द वीडियोज देयर. ठीक है. दिस इज द चैनल Vsauce. और उसके बाद एक और चैनल है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. ठीक है. अगेन इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करते हैं.
अच्छा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैनल एंड दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश विद टीवी सीरीज। और यहाँ पर डिफरेंट टीवी सीरीज के साथ लर्निंग दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ टीवी सीरीज हैं और कुछ मूवीज है, सिम्पसन से रिलेटेड कार्टून्स हैं। इसमें लोग करते क्या है पता है, ये लोग सीरीज या फिर मूवीज से रिलेटेड कुछ डायलॉग्स उठाते हैं और उन डायलॉग्स को एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर ये बात क्यों की गई। शकीरा के सॉन्ग्स हैं, उनकी एक्सप्लेनेशंस हैं। इसके अलावा लायन किंग से रिलेटेड है, अलादीन जो मूवी है उससे रिलेटेड है, हैरी पॉटर से रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आगे आपने सर्च करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसके डायलॉग से रिलेटेड यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सो यू कैन जस्ट वॉच दिस, these will be very interesting and these videos will be improving your you know will be improving your English too. Okay, class. So these two video channels are there, and you can just follow them. I will be sharing the links of them on the WhatsApp group. तो आप वहाँ से इसका लिंक लेके इसको फॉलो कर लें। एंड आफ्टर दैट अगर आप इन चैनल्स की एक मतलब वीडियो भी रोज देखते हैं, दोनों चैनल्स की एक एक वीडियो रोज देखें, तो आई थिंक इतनी बड़ी वीडियोस हैं नहीं, ये शायद 20-20 मिनट की वीडियोस है। तो आप इन 20-20 मिनट्स की वीडियोस को अगर एक एक वीडियो एक एक दिन देखें, सो दैट मीन्स कि इट विल ऑल्सो इम्प्रूव योर लिसनिंग थिंग्स। ठीक है, आफ्टर दैट द अदर टिप इज दैट यू विल हैव टू लर्न एटलीस्ट 5 वर्ड्स डेली। अब क्लास ये मुश्किल काम आ गया। ठीक है, अब ये आप कैसे करेंगे? अच्छा, मैंने आपको एक बेसिक टिप बताई थी डेमो में, अगेन मैं आपको बता रही हूँ। लेट्स सपोज कि यू आर जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट समथिंग। ठीक है, पूरे दिन में कभी तो ऐसा कोई टाइम मिलता होगा जिसमें आप जब सिर्फ सोच रहे हो। ठीक है, ओके, सो जस्ट लाइक दैट कि अभी आप जहाँ बैठे, लेट सपोज कि ये वो टाइम है जिसमें आपने सोचना है। ठीक है, तो इस टाइम पर आपने क्या करना है, अपने आसपास देखना है व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर सराउंडिंग्स। somebody is doing something, let's say somebody is washing clothes। ठीक है, अब आप कहेंगे कि वॉशिंग क्लोथ्स की तो आपको इंग्लिश आती है, फिर आप सोचेंगे वॉशिंग के बाद क्या होता है, कपड़ों को निचोड़ते हैं। अब आप कहेंगे निचोड़ने की इंग्लिश मुझे नहीं आती, तो देन यू विल बी सर्चिंग। जब आप सर्च करेंगे तो आपको वर्ड मिलेगा रिंग द क्लोथ, रिंग। ठीक है, तो दैट मीन्स निचोड़ना, कपड़े निचोड़ना। ठीक है, अब आपको ये एक वर्ड मिल गया जो कि आपने नया वर्ड सीख लिया आज। फिर उसके बाद आपने देखना है कि वो जो तार पे डाले जाते हैं ना कपड़े, तो वो उसको क्या कहते हैं, आपको वर्ड मिलेगा लाइन अप द क्लोथ्स। ठीक है, तो अब आपको ये दूसरा वर्ड मिल गया। इस तरह से डेली बेसिस पे जब आप डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट चीजें सोचते हुए या अपने आप को रिकॉर्ड करते हुए कोई प्लानिंग करते हुए आपको कॉमन वर्ड्स मिलेंगे जो जिनकी आपको इंग्लिश नहीं आती होगी। उन वोकैबुलरी के वर्ड्स को आप काउंट करेंगे, एटलीस्ट 5 वर्ड्स आपने डेली याद करने। कॉमन वर्ड्स उठाएंगे, मुश्किल वर्ड्स नहीं उठाएंगे अभी। ठीक है, उनको आपने याद करना है, चाहे तो अपने पास नोट कर लें, चाहे तो मोबाइल में नोट कर लें। एंड देन यू विल हैव टू यूज दैम डेलिबरेटली इन योर स्पीकिंग। डेलिबरेटली का मतलब है जानबूझ के उन्हें आपने यूज करना है अपनी स्पीकिंग में। इस तरह वो वर्ड आपको पक्के पक्के याद हो जाएंगे, आपके माइंड में बैठ जाएंगे और फिर वो आपके माइंड से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये 5 वर्ड्स डेली आप याद करेंगे तो 1 महीने में अच्छे खासे वर्ड्स हो जाएंगे जो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप इस चीज़ को लेकर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगी आपने सिर्फ कॉमन वर्ड्स पे काम करना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, यू कैन डू द प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज द मेन थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू फॉर योर इंग्लिश, क्योंकि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और उस प्रैक्टिस के साथ ही आप जो है वो अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करते रहें, देन यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश।
ओके क्लास, सो प्रैक्टिस इज द मेन थिंग, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए कोई दूसरा फार्मूला नहीं है. इफ़ यू डू द प्रैक्टिस अ लॉट, और ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स बताई हैं आज. तो अगर आप सिर्फ इन्हीं टिप्स को फॉलो करेंगे ऑन द डेली बेसिस, यू विल बी फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइंस आई हैव गिवन टू यू, so you will be improving your English in few days. Okay, so only the practice is the process that can improve your English. Okay, other than that ऐसा नहीं हो सकता कि पानी में डिजोल्व करके आप उसे पी लें एंड उसके बाद जो है वो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए. ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी. ठीक है, सो यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट वो प्रैक्टिस आप बहुत इंटरेस्टिंग वेज में कर सकते हैं बाय फॉलोइंग ऑल दीज प्रीवियस गाइडलाइंस. नाउ क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, अभी तक हमने टिप्स पढ़े, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात करेंगे. अच्छा क्लास, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रामर, तो बहुत सारे लोग ये मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि अगर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स, टेंसेस और ग्रामर की जो मुश्किल मुश्किल चीज़ें, अगर जब तक आपको वो चीज़ें नहीं आती होंगी तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी. ऐसा नहीं है. इंग्लिश राइटिंग के लिए ज़रूर इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और ग्रामर और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट फॉर द स्पीकिंग अगर आपकी ग्रामर इतनी स्ट्रांग नहीं भी है, दैन यू कैन स्पीक इंग्लिश, तब भी आप बोल सकते हैं. इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ. लेट सपोज के यू गो समवेयर जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है और उससे पहले आपने इंग्लिश नहीं सीखी, आपको इंग्लिश सीखने का टाइम नहीं मिला, एंड यू गो समवेयर जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है. तो अब आप क्या करेंगे वहाँ जाकर? क्या आप चुप रहेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होगा. कुछ दिन ऐसा होगा, यू विल बी फीलिंग हेजिटेशन, बट आफ्टर सम टाइम you will be understanding people, what they are talking about around you. You will be understanding them. ठीक है, and after that you will be starting speaking broken language. अगर आपको इंग्लिश की ABCD भी नहीं आती ना, तब भी कुछ टाइम के बाद आप ओके. तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर आप जो है वो ग्रामर, हाँ मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आप ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर इंग्लिश ही बोली जा रही है, तो वहाँ पर जाकर आप कुछ टाइम के लिए तो आपको हेजिटेशन होगी. आफ्टर दैट यू विल बी स्टार्टिंग स्पीकिंग ब्रोकन लैंग्वेज, और उस ब्रोकन लैंग्वेज के बाद आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू डेज, समझ लें 1 महीना आपको लगेगा, एंड आफ्टर दैट यू विल बी स्टार्टिंग स्पीकिंग दैट लैंग्वेज. अब क्या हुआ कि आपने ग्रामर सीखी? नहीं, आपने सिर्फ लिसनिंग की, आपने सिर्फ उन्हीं बातों को दोबारा रिपीट किया, आपने सिर्फ अपने माइंड को इस बात के लिए प्रिपेयर किया कि इट विल हैव टू स्पीक, और इट स्टार्ट्स स्पीकिंग. ठीक है, माइंड ने उस चीज़ को कलेक्ट कर लिया, जो लिसनिंग के साथ उसके माइंड में एक इनपुट आया ना आपके माइंड में, उस माइंड ने वो चीज़ कलेक्ट कर ली, उसको प्रोसेस किया आपके माइंड में, और उसका आउटपुट निकाल दिया आपकी टंग के जरिए, जो कि स्पीकिंग की फॉर्म में था. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द बेस्ट मैथडोलॉजी फॉर लर्निंग एनी लैंग्वेज, स्पीकिंग. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग. ठीक है, सो दैट्स वाई ग्रामर डिस्क्राइब्स इंग्लिश, हाउएवर इट इज़ नॉट इंग्लिश. ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रामर नहीं आती तो आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते, आपको इंग्लिश फिर भी आ जाएगी. ठीक है, अच्छा, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और सम पीपल add articles in that, so there are 9 parts of speech. ओके, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, तो इसमें क्या है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड ऑल्सो द आर्टिकल्स, बट वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली 7 ऑफ दैम. ठीक है, क्योंकि इंटरजेक्शन का हमारा स्पीकिंग में काम नहीं है, तो हम 7 पढ़ेंगे. ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट नाउन. नाउन हमने हमेशा ये पढ़ा है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. ठीक है, हमने हमेशा ये बात पढ़ी है, बट ऐसा नहीं है. नाउन कैन बी द नेम ऑफ एनी थिंग फिजिकली और मेंटली.
present in this world and after this world too. ठीक है, क्योंकि दुनिया में भी जो चीजें हैं और बाद में भी जो चीजें हैं, जो चीजें फिजिकल हैं, जो हम फील कर सकते हैं वो भी, और जो हमें नजर नहीं आ रही उनके भी नाम है. ठीक है, सो पर्सन, प्लेस और अ थिंग नहीं, बल्कि हर चीज का नाम है इस दुनिया में, इस पूरी यूनिवर्स में हर चीज का नाम है. ठीक है, लेट सपोज शी इज अ पर्सन एंड शी इज अ टीचर. इट्स एन एनिमल एंड टाइगर, तो ये दोनों नाउन्स हो गए. ठीक है, अच्छा उसके बाद थिंग, अम्ब्रेला. आइडिया, idea is also a noun. Happiness is also a noun, but we cannot see them. और ये कोई thing नहीं है, ये feeling है. ठीक है, तो everything in this universe has a noun. Okay, after that we will be understanding about singular and plural noun. अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं मैं आपको बताती हूँ. Okay, so singular nouns are book, car and box. Plural nouns of these singular. बुक का हो गया बुक्स, कार कार्स, बॉक्स बॉक्सेस. नाउ क्लास, व्हाई वी आर प्रोनाउंसिंग दिस बुक्स विद एस एंड दिस कार्स विद जी. हालांकि एस लगा हुआ है, कार में भी एस लगा हुआ है, बुक में भी, लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं बुक्स और इसको हम पढ़ेंगे कार्स. There are some reasons. ठीक है, so you will have to understand that some plurals have the sound of z at the end of that word specifically. ठीक है, so just like books, cars, then boxes, you can say tables, chairs, laptops. इसमें ऐसा आ रहा है laptops में. ठीक है, you can say mobile phones, s. ठीक है, so just like that you will have to find out some other words in that we can pronounce z, or some other words with s sound. Okay, it's your task and you will have to find out these words around you. ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं countable and uncountable nouns की. So countable nouns like pen, book, computer, जिनको हम count कर सकते हैं. Uncountable noun जिन्हें count नहीं किया जा सकता. For example, sugar, blood, water. You cannot count them, but you can do one thing. You can add more words here for make them countable, for making them countable. ठीक है, जैसे कि water है, आप water को कह सकते हैं water, it is not countable, but when you say a glass of water, now this is countable. Glasses भी हो सकते हैं, 2 glasses, 3 glasses. You are gonna say a glass of water, a jug of water, a bottle of water, a tank of water, a water body, you can say. ठीक है, so just like that. तो क्लास क्या है कि हम uncountable nouns को countable कैसे बनाते हैं, उसमें कुछ words add कर देते हैं. Just like that, coffee is uncountable, but you can say a cup of coffee, a bag of coffee. अगर आपने खरीदनी है कॉफी तो आप क्या कहेंगे, आई एम गोइंग टू बाय कॉफी. नो, आप कहेंगे आई एम गोइंग टू बाय अ जार ऑफ कॉफी या अ पैक ऑफ कॉफी, या अ बॉटल ऑफ कॉफी भी हो सकता है, बॉटल में भी आती है. ठीक है, तो इट डिपेंड्स. इस तरह से ना, व्हेन यू टॉक लाइक दिस, इस तरह से क्या होता है, आपको एक तो वर्ड्स ज़्यादा मिलते हैं और ऊपर से ऐसा लगता है कि आपकी स्पीकिंग अच्छी है क्योंकि आपने ज़्यादा वर्ड्स बोले. अगर आप कहेंगे आई एम गोइंग टू बाय कॉफ़ी, सो दैट मीन्स के बस नॉर्मल चीज़ है. बट इफ़ यू आर सेइंग आई एम गोइंग टू बाय अ कप ऑफ कॉफ़ी, या आई एम गोइंग टू बाय अ बैग ऑफ कॉफ़ी, अ पैक ऑफ कॉफ़ी, अ जार ऑफ कॉफ़ी, सो दैट मीन्स कि यू आर हैविंग मोर वर्ड्स टू स्पीक. ठीक है, फिर उसके बाद राइस आर अनकाउंटेबल, बट यू कैन से अ प्लेट ऑफ राइस, अ बाउल ऑफ राइस, अ पैक ऑफ राइस, a bag of rice. Okay, so it depends कि how you are using these uncountable nouns. ठीक है, now class, here are some more nouns which are not singular and plural, और ये countable and uncountable भी नहीं होते. ठीक है, these are used as it is, just like that furniture. आप कह सकते हैं कि इट इज़ माई फर्नीचर. सो फर्नीचर के अंदर इसका मतलब ये है कि फर्नीचर कोई एक पीस नहीं है, आप सारे पीसेस के लिए भी फर्नीचर यूज कर सकते हैं. यू आर नॉट गोइंग टू एड हेयर एस
ठीक है. आफ्टर दैट व्हेन यू आर सेइंग दिस इज लाइव न्यूज, सो दैट मीन्स कि वो जो न्यूज है वो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है. बोथ द फॉर्मेट आर देयर इन द न्यूज. ठीक है. व्हेन यू से एडवाइस, तो एडवाइस अगर एक से ज्यादा भी हो तब भी आप उसमें एस नहीं लगाएंगे. यू विल बी सेइंग इट इज अ गुड एडवाइस, यू गिव मी गुड एडवाइस. चाहे उसने 2 या 3 एडवाइस भी दी हो तब भी आप उसे काउंट नहीं करेंगे. आप कहेंगे ओके यू गिव मी गुड एडवाइस. इंफॉर्मेशन में हम एस नहीं लगाते, हम कहते हैं it is very beneficial in information. Okay, so just like that these words are here that are not singular nor plural. ठीक है. Okay, now class if you have any questions you may ask the questions. Other than that मैं आपको आज का assignment बताऊंगी. अच्छा जी, आप लोगों के मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या आप लोगों को? Uzair Baloch, if I suggest you the books, so it will not be at the level of your interest. So I suggest you to take your personal favorite books. अब वो चाहे कोई सी भी बुक्स हो सकती है. इंग्लिश में आपको हर तरह की बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्मेट भी मिल जाएंगी. आप गूगल स्कॉलर पे भी चेक कर सकते हैं, आपको हर तरह की बुक्स मिल जाएंगी. आप वैसे भी बुक्स खरीद के भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन पढ़ें. सो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर favorite things and favorite topics, so you can just read the books. Yeah, I will be sharing the links of the YouTube channels there on the WhatsApp group, so you can just watch. चैनल नेम था, एक था Vsauce और एक था लर्न इंग्लिश विद टीवी सीरीज. Yes, I will be sharing, Nurulan. Okay. Yes, Farzana, this is the difference. निचोड़ना जो आप कह रही है ना, लेमन निचोड़ना, वो स्क्वीज कहलाता है. और रिंग जो है वो कपड़े निचोड़ने को कहते हैं. कपड़े निचोड़ने में वो चीज नहीं है. ठीक है. सो दैट इज वाई द वर्ड इज डिफरेंट. ठीक है. सेंस डिफरेंट है ना. अब आप देखें लीमू को आप किस तरह निचोड़ते हो, कपड़े निचोड़ने की बात क्या आ रही है. ठीक है. तो सेंस डिफरेंट है, इसलिए वर्ड भी डिफरेंट है. ओके. ऑल डिपेंड ऑन द सेंसेस. मीनिंग पे कभी मत जाएं, क्योंकि देखें किसी भी लैंग्वेज का किसी भी दूसरी लैंग्वेज में वर्ड टू वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन नहीं हो सकती, क्योंकि उस लैंग्वेज के सेंसेस अलग है, दूसरी लैंग्वेज के सेंसेस अलग है. दैट्स व्हाई वी विल हैव टू टेक द एक्सट्रैक्शन ऑफ द सेंसेस. और ये चीज आपको टेंसेस जब मैं पढ़ाऊंगी ना तब आपको बहुत क्लियर समझ आएगी. अच्छा जी, एस एंड जी साउंड कंफ्यूजिंग है. एस एंड जी साउंड कंफ्यूजिंग क्यों है? आप ऐसा करें कि यू कैन जस्ट फाइंड आउट द वर्ड्स ऑन इंटरनेट एंड यू कैन डू द प्रैक्टिस बाय योर ओन. अपने आसपास देखें क्या क्या स्टफ है और उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को प्लूरल और सिंगुलर करके देखें, फिर साउंड कौन सा आ रहा है. ठीक है. सो यू कैन जस्ट डू द प्रैक्टिस जस्ट लाइक दैट. इंग्लिश नॉवल भी पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसिया. ओके. बुक एप्स, I am not sure about this, Fatma. I will see, then I will be telling you. ठीक है. नहीं, I will not be sharing the PowerPoint file because I don't want you people to make the notes. Do not make notes of anything. Just keep the things in your mind. I will be sharing the recording. उस recording को आप चाहे जितनी भी दफ़ा देखें, लेकिन आपने नोट्स इस तरह नहीं बनाने जैसे कि आप स्कूल या कॉलेज में बनाते हैं. वो नोट्स बनाने का जो एक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में सिनेरियो है, इट इज़ नॉट अ गुड वे. यू डू नॉट नीड टू क्रिएट नोट्स, यू विल हैव टू कीप दैट इन माइंड. और ये आपकी सिर्फ स्पोकन इंग्लिश है, ये कोई साइंस वाइंस नहीं चल रही है जिसमें फॉर्मूले याद करने हैं तो आपने नोट्स बनाने. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. ओके. सो यू जस्ट नीड टू वॉच द रिकॉर्डिंग्स अगैन एंड अगैन, जितनी भी दफ़ा देखें, बट मेमोराइज करें चीज़ों को. हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें यू कैन जस्ट नोट डाउन. ओके. ओके क्लास, सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द असाइनमेंट टुडे. आपका असाइनमेंट बहुत ईजी है. यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन अ वॉइस नोट.
अगेन आई एम टेलिंग, इन अ वॉइस नोट, टेक्स्ट फॉर्म में नहीं, वॉइस नोट में मुझे चाहिए, ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, टेलिंग अबाउट योर नेम, योर क्वालिफिकेशन, व्हाट यू डू एंड योर प्लेस टू लिव। ये 4 चीज़ें आपने बतानी है। आई एम गोइंग टू ओपन अप द प्राइवेसी ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप। आज तो नहीं, कल खोलूंगी, ठीक है। तो टुमारो आई विल बी ओपनिंग अप द प्राइवेसी of the WhatsApp group. There you will be introducing yourself in the voice note. I just want to listen to your voices, क्योंकि spoken English के सारे assignments voice form में होंगे, इसलिए text acceptable नहीं है। Okay, hopefully you understand this. Now if you have any other questions, you may ask the questions. Zubair Ahmed, if you have the problem with the spelling, so you need to, again and again memorize it, okay? And the other thing is that if you do not, memorize the spelling, so it is no use for the speaking. हाँ, writing के लिए तो है, स्पीकिंग के लिए स्पेलिंग मेमोराइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया ना, अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपको ABCD भी नहीं आती, तब भी आप अपनी उस इंग्लिश की स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, हम सीख नहीं सकते। और जो इंग्लिश बोल रहा होता है हम उसको ऐसे देख रहे होते हैं कि पता नहीं भाई उसने क्या कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जैसे कि हमारी और आपकी उर्दू लैंग्वेज है। वो एक मुझे लतीफ़ा याद आ रहा है इस टाइम पर, बड़ा अच्छा सा जोक है कि उसमें जो है वो ये कहा जाता है कि एक आदमी बाहर कहीं गया अमेरिका में, ठीक है, और उससे पूछा किसी ने कि तुमने सबसे सरप्राइजिंग चीज़ वहाँ पे क्या देखी, तो उसने कहा सबसे सरप्राइजिंग ये था कि वहाँ पे बड़े तो बड़े बच्चे भी इंग्लिश बोल रहे थे, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग कि इंग्लिश बोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चे भी इंग्लिश बोल सकते हैं, तो दैट मीन्स कि उनको वो इन्वायरमेंट मिलता है। तो आपने भी अपनी लिसनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। सबसे ज़्यादा आप अपनी अगर लिसनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपका माइंड उसी को प्रोसेस करके आपकी वर्ड्स की स्पीकिंग को बेहतर कर देगा। दैट इज़ द परफेक्ट मैथडोलॉजी ऑफ लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। Okay, so class, I just want to say to the students who are here, they are giving us access to the premium paid lectures and who are not enrolled yet. तो आपने जहाँ से भी, आप स्टूडेंट्स ने जहाँ से भी लिंक लिया है, जो अनपेड है मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो आप लोगों ने जहाँ से भी लिंक लिया है वहाँ से आप इंफॉर्मेशन लेकर और कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास का एक्सेस आप लोगों को इसलिए दिया गया था ताकि आपको अंदाजा हो कि हाउ वी आर गोइंग टू लर्न हेयर, एंड होपफुली यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड यू एंजॉय दिस क्लास। और आगे आपकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लासेस आने वाली हैं, ये तो कुछ भी नहीं थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लासेस आने वाली हैं इन विच यू विल बी लर्निंग द प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, ओके। सो आई विल बी गाइडिंग यू टूवर्ड्स दैट। You will be having different interesting activities, you will be performing different tasks, and then you will be improving yourself, okay। So hopefully you understand this and you can join our course. Tomorrow कोई क्लास नहीं है मनाल। मनाल, आर यू enrolled person? अगर आप एनरोल्ड हैं तो ऑलरेडी हमने स्केड्यूल शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे। कल कोई क्लास नहीं है, बल्कि इस क्लास फर्स्ट लेक्चर के बाद जो क्लास होती है उसमें थोड़ा गैप होता है हमारा, ठीक है। टेंसेस आर नेसेसरी, या टेंसेस आर नेसेसरी, बट मैं आपको जैसे टेंसेस पढ़ाऊंगी वो प्रैक्टिकल यूज होंगे और आपने वैसे टेंसेस पहले नहीं पढ़े होंगे, ओके। आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड हैं तो आप एनरोल्ड हैं। मानूर, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं वो सब एनरोल्ड हैं, दैट मीन्स। मनाल शकील, आपने जहाँ से आपको इस क्लास का लिंक मिला है ना, आप उन्हीं से कांटेक्ट करें। दे विल बी टेलिंग यू अबाउट द पेमेंट डिटेल्स एंड हाउ टू एनरोल इन द कोर्स, ठीक है। असाइनमेंट की लास्ट सबमिशन डेट कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट क्लास से पहले आप सबमिट कर सकते हैं, और हमारी नेक्स्ट क्लास अभी काफ़ी दूर है,
फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमारा गैप होता है आई थिंक 5 days या शायद ज़्यादा है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन स्केड्यूल में वो मौजूद है। तो आप जो है उससे पहले असाइनमेंट सबमिट करवा दें। आई विल बी ओपनिंग अप द प्राइवेसी ऑफ द ग्रुप टुमारो, ठीक है। तो कल से आप लोग असाइनमेंट ये सबमिट करवाएं। और ये असाइनमेंट वैसे तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो सिर्फ आपने इंट्रोडक्शन ही देना है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, ओके एनी, एनी नो प्रॉब्लम, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स। अच्छा, okay class, if you have any other question you may ask the questions. मानूर खान, you can contact the DSC management अगर आपका by mistake group left हो गया है तो they will be adding you, ठीक है। मरवा रहमान, क्या बात कर रही हैं आप, क्या पूछ रही हैं? स्पोकन इंग्लिश बैच नंबर 30 का जो ग्रुप है आफाक अहमद, उसमें आपने इंट्रोड्यूस करना है। मैं अभी मैसेज सेंड करूंगी ना, आपको लिंक्स वगैरह भेजूंगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। Yes, of course, Ujala. You can just watch the recordings and the assignments of our, previous students on the FB group. तो वहां पर जाके आप देखेंगे how students are improving their language, because we are following the practical way of speaking English. We are not going to tell you about the, the things related with the complicated structures and the other thing. We will be following the practical approach. ठीक है, so that you will be improving your language, and only the condition is that you will have to do the practice. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगी, जितनी चीज़ों की आप प्रैक्टिस करेंगे, whatsoever I have told you in the beginning of this lecture, ठीक है। तो मैंने शुरू में आपको जो टिप्स बताई हैं, अगर आप सिर्फ उन्हीं टिप्स को कुछ दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता फॉलो करती हैं, you will be watching the results in your speaking. 31 नहीं है, बैच नंबर 30 है। हामिद अली, okay Nadia, that's really good. Okay class, so hopefully you understand today's lecture, and again I'm gonna say with the unpaid students to contact to their relevant groups and members, so that they can enroll with us and they can avail this opportunity. Okay, so class, hopefully you enjoy this lecture. We will be meeting now on WhatsApp, ठीक है, and after that we will be meeting for the lecture 2 after some time, ठीक है। So thank you so much from my side. Allah Hafiz.